Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. So today we will start practice at 15.4. Now before starting with that, we will see area of a triangle. So what is the formula for area of a triangle, right? So you know the formula, that is half of base into height. That's the for area of a triangle. But how to find the area of a triangle if height is not given? मीन्स अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे सो आपको हाइट और बेस गिवन होना चाहिए, राइट? बट इफ हाइट इज नॉट गिवन, लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, सो हाउ वी विल फाइंड द एरिया, right? Means a part of being given base and height, the sides will be given. So we will use the formula area of a triangle root s into s minus a into s minus b into s minus c. So it's known as Heron's formula, where s is the semi perimeter. S क्या है? Semi perimeter means before finding out the main area we will start with the semi perimeter. आप क्या करोगे? Semi perimeter find करने से start करोगे. सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स जो पेरीमीटर है उसका हाफ, सेमी पेरीमीटर, राइट? सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ. तो आपको क्या करना रहेगा? जो पेरीमीटर रहेगा मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, उसको क्या करना है? हाफ से मल्टीप्लाई. ओके, सो नाउ we will find the semi perimeter and then area of the triangle using the Heron's formula. Okay, so we will be using this formula in practice at 15.4. 15.4 question number 1. Side of a triangle are 45 centimeter, 39 and 42. Find its area. आपको triangle की sides given है 45, 39, 42. So what you are supposed to find? You are supposed to find the area. Okay, so we will use this formula. First we'll find the semi perimeter a plus b plus c upon 2. Then using the semi perimeter we will find the area of triangle. Okay, so now let's solve the question. Question number 1. You have learned about the ionic compounds in the debate chapter. You have seen that ionic compounds have high melting and boiling point and they conduct the electricity in the molten and dissolved state. In the previous lesson we have so first we will assume solution कैसा रहेगा आप लोग का, ये क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन थी आपको, ठीक है? नाउ फर्स्ट हम लोग अज्यूम करेंगे लेट ट्रायंगल ए बी सी हैव साइड्स. कितनी साइड्स रहेंगी? ए बी एंड सी. सो साइड ए का मेजरमेंट आप लिखोगे 45 सेंटीमीटर, राइट? बी 39 centimeter, C 42 centimeter. So first we'll find the S, that is semi perimeter. Semi perimeter is equals to 45, means आप पहले formula लिखो, right? A plus B plus C upon 2. So write A B plus C upon 2. Now we will write down the values. 45 plus 39 plus 42 upon 2. Now what you have to do, you have to add all the values and divide this addition by, you will get the semi perimeter. So now 45 plus 42 क्या मिलेगा आपको? 87, right? 5 plus 2 7 and 4 plus 4 8, 87. 87 plus 39 क्या करना है आपको? 87 में अब 39 ऐड करना है. So now what you will get? 9 plus 7 16. 6 you will write 1 carry. 8 plus 11 12. 126 क्या मिला आपको? एडिशन 126. अब 126 को आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे. So 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 3s are 6, right? So here you got the answer is 63. Means S की वैल्यू आपको क्या मिली? 63. Now what you are supposed to find? You have to find the area. So we will write down the formula for area. Okay. So now area of triangle ABC is equals to under root S into S minus A into S minus B into S minus C. ठीक है? Now we will substitute the values. S क्या है? 63. Now 63 minus A means A की वैल्यू क्या थी आपके पास? 45. So we will write here 63 minus 45. Then S that is 63 minus 40, 45 के बाद नेक्स्ट साइड क्या थी? 39 into 63 minus C. C की वैल्यू क्या है? 42. Okay.
अंडर रूट 63 एज इट इज रखोगे आप ना। 63 में से आपको 45 माइनस करना है, सो व्हाट यू विल गेट 13 माइनस 5 8, 5 माइनस 4 1 18 इनटू 63 माइनस 39 63 माइनस 39। सो जब मैं आप सब्ट्रैक्ट करोगे 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, सो यू विल गेट 4 एंड 5 माइनस 3 2, राइट। नेक्स्ट 63 माइनस 42, अब 63 में से 42 माइनस करना है, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 4 2 21। सो नाउ यू हैव 63 इंटू 18 इंटू 24 इंटू 21। अब आपको क्या इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे नंबर्स में इसको स्प्लिट करोगे, फैक्टर्स निकालोगे जिसका आप इजीली स्क्वायर रूट निकाल सको, राइट। सो नाउ 63 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में है ना। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 63 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 9 7 60, ठीक है। फिर अब 18 भी किसके टेबल में आता है, 9 के, है ना। तो 9 2 ज़ा 18, मतलब ऐसे फैक्टर्स में स्प्लिट करो, देखो 6 3 ज़ा 18 भी लिख सकते हो, बट 6 और 3 किसी भी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर नहीं है ना, 9 स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, ऐसा ऑप्शन लोगे जिसका आप स्क्वायर रूट इजीली निकाल लो, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट निकाल लोगे 3 मिलेगा, फिर से आपको वहाँ पे 3 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना। 24 को आपको क्या करना है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। सो 24 6 इंटू 4, राइट। 6 4 ज़ा 24, so 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। नाउ 21 7 3 ज़ा 21, किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर नहीं है। सो आप क्या करो, 7 इंटू 3 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास 7 7 है ना, हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नाउ वी विल टेक द स्क्वायर रूट। अब इसको स्क्वायर, आपको ये जो रूट के अंदर नंबर्स एक एक करके क्या करना है, उसको आउट ऑफ द रूट लेना है, ठीक है। अब देखो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो आप इसको स्क्वायर रूट के बाहर ले जाओगे 3, फिर वापस से ये वाला 9 ले आओगे बाहर, है ना। तो यहाँ पे मिलेगा फिर से 3, फिर आप ये 4 आउट ऑफ द रूट ले लोगे, है ना। तो बाहर आके वो बन जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 है ना। फिर देखो 7 इंटू 7 है, मतलब 49 है ना। तो 49 बाहर आके क्या हो जाएगा, 7। फिर बचा के आपके पास 2 6 3, है ना, 2 6 3। सो नाउ लो, अब वापस से रूट में क्या रहेगा, 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 6 है ना, 6 इंटू 6 भी बाहर आ सकता है रूट के, आप एज इट इज़ लिखो पहले यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 बाहर आके ये 6 इंटू 6 36 है ना, 36 बाहर आके ओनली 6 हो जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने सारे नंबर्स को आउट ऑफ द स्क्वायर रूट निकाल लिए, है ना, स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 2 इंटू 7 इंटू 6, फिर 9 2 ज़ा 18, 7 6 ज़ा 42, है ना। अब हम क्या करेंगे, 18 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा। सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई, 8 2 ज़ा 16, 6 यू विल राइट हियर 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33, जीरो, 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, ऐड करो 6, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, व्हाट यू गॉट हियर 756, क्या मिला आपको, 756, राइट। सो आपको फाइनल आंसर मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 756 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया आपको प्रॉपरली, हम लोग ने क्यों ऐसे फैक्टर्स में स्प्लिट करे, क्योंकि अब देखो आप पूरा होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते फिर उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालने के लिए अभी आपको उसके फैक्टर्स निकालने ही पड़ते, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, पहले ही नंबर्स के फैक्टर निकाले और जो जो रिपीटेड नंबर्स है वो हम लोग ने आउट ऑफ द स्क्वायर रूट ले ली, है ना। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
Question number 2. Look at the measures shown in the adjacent figure and find the area of quadrilateral PQRS. Now this is again very simple question. क्या करना है आपको? ट्राइंगल पी ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS उसका आपको क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? पहले ट्राइंगल PSR का एरिया फाइंड करोगे, फिर PRQ का फाइंड करोगे और इजीली क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, राइट? सिंपल क्वेश्चन है। सुना लो। अब ये क्या है? ट्रायंगल PSR। ट्रायंगल PSR का आप इजीली फाइंड कर सकते हो एरिया। कैसे? देखो, बेस गिवन है, हाइट गिवन है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं ना, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बट यहाँ पर देखो PQR इट्स नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, इसमें आप लोगों को हाँ, इसमें आपको सिर्फ बेस गिवन है, PQR हाइट तो गिवन ही नहीं है ना। PQR देखो, राइट एंगल ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर साइड होती है वही हाइट होती है, इसलिए हम लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे PQR राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हाइट अलग से गिवन होनी चाहिए थी, ऐसे ही कुछ है ना। बट नहीं गिवन है, तो बताओ हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? दिस वन। बट फॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला वी शुड हैव द थर्ड साइड ऑल्सो। थर्ड साइड कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड साइड हम लोग पहले फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के साथ हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे हाइपोटेनस, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरीके से ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। So here it's the quadrilateral PQRS having sides 36, 15, 25 and 56 centimeter, right? So now we will find the area of quadrilateral PQRS. Okay, so we will write here. सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? हम यहाँ पे एरिया ऑफ PSR फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट। सो 1/2, बेस क्या है 15 और हाइट क्या है 36। अब इसको सॉल्व करो। 2 1 2, 2 1 2, 1 कैरी, 2 8 16, क्या मिला? 15 इंटू 1 15 इंटू 18, राइट। मतलब 15 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 15 इंटू 18। सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। 8 5 40, 0 you will write here, 1 4 carry, 5 1 5 plus 4 9, 0 18 1 18. Now you will add these numbers, 0 plus 0 0, 9 plus 8 17, 7 1 carry, 1 plus 1 2, 217। मीन्स आपको एरिया का आंसर क्या मिला? एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR इज इक्वल्स टू 270। इसका एरिया मिला हम लोग को 270 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब PQR का फाइंड करना है, तो PQR के लिए थर्ड साइड की जरूरत है पहले, है ना। जो थर्ड साइड है वो है PR, जो ट्राइंगल PSR का हाइपोटेनस भी है ना। इसका तो एक साइड है ही PQR की, बट PSR की भी हाइपोटेनस साइड है ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे? इसके हाइपोटेनस पहले फाइंड कर लेंगे। सो इन ट्राइंगल PSR by which theorem? By Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem क्या है? Hypotenuse square means PR square is equals to
पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, पी एस की वैल्यू कितनी है 15, 15 स्क्वायर 36, एस आर की वैल्यू है, सो राइट हियर 36 स्क्वायर, 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर फाइंड करो और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। सो नाउ लेट्स फाइंड इट, 36 into 36, 6 is the 36, 6 you will write 3 carry, 6 3 is the 18 plus 3, 19 20 21 0, again 36 6 is 216, so यहाँ पे आप लिखोगे वापस से 216, नहीं 36 3 is है ना, 6 3 is 18, 8 you will write 1 carry, right, 3 3 is 9 plus 1 10, ठीक है। अब हम लोग इसका एडिशन करेंगे, ठीक है। 6 plus 0 6, 8 plus 1 9, 2 plus 0 2 1, so here you will get 1296, क्या मिलेगा आपको 1296, तो हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे 1296 एंड 225, so now let's add, so you will get PR square is equals to 1296 plus 225, so now let's see what we will add after adding these two numbers. Now this can be also shown by the single form. 5 plus 6 11, 1 you will write here 1 carry, 9 plus 1 10 plus 2 12, 2 you will write 1 carry, 2 2, 4 plus 1 5 and 1 1 5 2 1, so PR square is equals to 1 5 2 1. सो नाउ आपको पी आर की वैल्यू फाइंड करना है, सो आप क्या करोगे स्क्वायर रूट फाइंड करोगे 1521, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 1521 you will find out and you will write down the final answer. Okay, now let's find out. The covalent bond formed between the atoms indicated by social circle and metallic symbols crossing each other. देखो यहाँ पे ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सर्कल ड्रॉ किया, इस हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल ड्रॉ किया, और यहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट, और यू कैन सी दे आर ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज आल्सो ड्रॉन विदाउट शोइंग द सर्कल। अब ये डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विदाउट सर्कल के भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन पेयर ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट वन कोवेलेंट बॉन्ड, वन पेयर ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस टू इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट वन कोवेलेंट बॉन्ड। A covalent bond is also represented by small line, so now here this is represented by small line running the symbols of the two atoms, जो दो एटम के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है उसके बीच में एक स्मॉल लाइन को ड्रॉ करते हैं। द लाइन स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब जो ये लाइन स्ट्रक्चर है इसको पूछा बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। Let us first look at the hydrogen molecule, which is a simple example of the molecule formed by covalent bond. Let us first look at the hydrogen molecule, which is the simplest example of molecule formed by the covalent bond. We have already learned that atomic number of hydrogen being 1. The atomic number hydrogen का 1 है,